देखो रेगुलर है यार। ओ अच्छा अच्छा ये चलिए भाई। हेलो अनम्यूट करो अपने आप को। Hello, are you able to hear my voice? या यू आर ऑडिबल नाउ। Okay, okay, all right. वीडियो क्वालिटी कैसी है? ऑडियो दोनों ठीक है? थोड़ा सा वीडियो फ्रीज हो रहा है थोड़ा सा। Okay, I have learned from the books. So ma'am, there is a question, there is a query that I would like to know, or we would like to know that Yeah, how this health coaching is different from the consultation. yeah. Yeah, so exactly what happens in health coaching is that it's a kind of partnership. The whole process of health coaching from the beginning to the end is a partnership rather than just providing solutions to the problem. Suppose a patient comes to your healthcare facility and you are a physiotherapist or you're an MBBS doctor or you're a nurse or you're a dentist. So whenever a patient you see that comes in your healthcare facility comes with a problem or a complaint, they have any kind of health ailment, they have some kind of disease or pathology or whatever they are facing with, they just present you with they present themselves with a problem and you provide them the right solution and the medical intervention after
diagnosing after observing them. And what usually happens in consulting is that the expert of all this medical knowledge is the health practitioner, and the patient or client has very little autonomy, or they have very little control over what they can do from their own side. But what happens in health coaching is that the whole core concept of coaching is based on the philosophy that patient to client is the expert of their own life, and they know what they have to do. They know what is best for them. They are whole and resourceful as a person. They have all the strength that is required to make a shift, to make a health and behavior change. And that change is facilitated by a health coach. Ma'am, if it is allowed, can we know how you have started thinking about this a different area, as you are from the physiotherapy background? So when you decided to work into this area or something like health wellness coach and coaching, can you please give some insight on it? Yes, I can. And there's a very interesting story behind this. And I was uh, too much into sports, and I really love reading about human biology. Since my early school days, I've been participating in sporting events, and all these things, activities really helped me with um, making a lifestyle change. And I was holding this belief. I had a very strong belief that yes, when we adopt a very healthy lifestyle, whether it's related to our eating habits, our physical activity, or the way we think, the way we manage our stress, the way we handle our relationship, conflicts, everything, it affects our health. So this was the thing that I knew from very early age. And when I had to choose my field, then I selected physiotherapy. And I was very fortunate enough to get all the wonderful mentors to teach me the right techniques and skills that further enhanced my wisdom and knowledge. And uh, it helped me treat my patients and clients in a way that was very fulfilling, I would say. And when I started my journey, when I completed my internship from Kota MBS Hospital, and Dr. Harsham Rajdeep sir was also there. And all those learnings that I got from my internship when we were treating patients under the guidance of sir and the head of department, that was a great learning actually. It made me think how just simple exercises can make such a drastic impact on a person. And even some of my batchmates have also joined in this webinar. They have also seen me treating patients, physiotherapy patients who came for physiotherapy, dealing with neurological problems and orthopedic issues. So there was one client who was suffering from Parkinson disease. And in just 1 month of treating him with all the physiotherapy interventions and exercises, he was able to walk, which he wasn't when he came into our facility, healthcare facility. And in just within 1 month, I witnessed such a drastic improvement. And it was a big transformation actually for a Parkinson patient to be able to walk around, to move around, to climb stairs, and all these things. So I was fascinated with how just simple exercises, how with the help of a support person who is all there to guide you, to teach you, provide you all kinds of support that you need, you can make somebody's life totally different from what it was. And after completion of my internship, I was selected in Tata Interactive Systems, a company in Mumbai. And there I was subject matter expert. And I had to create academic um,
courses for health and fitness, learned about how corporate works and how people works in corporate facility, what kind of problems they face, the employees, because of the uh, the environment that they are working in, and all the learnings I did in my physiotherapy and internship about ergonomics. I was able to see that, like, people facing problems related because of not having that kind of ergonomic workspace. So many people would come to me, my colleagues would come to me with a neck problem and back problem. And all these, every step that I took was a kind of learning for me. And it opened a door to the next big thing. And after completion of this project, I was I was employed in another company name is Goki, and they have a fitness tracker, and they eating habits and everything, and they have a health coach with them. So I was employed as a health coach, and there I got an opportunity to coach people who are dealing with health issues, chronic lifestyle diseases such as diabetes, thyroid. Even some of the people want, and were athletes also. Some of the people were having obesity, they were overweight. Even some of the people were normal, but still they believed and think that they were unhealthy. It was quite surprising for me, actually, how our thoughts and beliefs shape our reality. And after serving there for some time, I joined the next company that was Healthify Me. And there I got a lot of exposure with different kind of people and patients. And I was even able to make some product changes. We had Android and iOS app, and it's a health app where you can feed your whatever eating, whatever breakfast, lunch, dinner, you are eat, whatever that your diet and meal, whatever you are having, and what exercises that you're doing, your hydration level and daily reports will come, and all these things. So even I was part of the product team, and I used to used to suggest some changes as a health coach, that what people problem that people are facing. So all these things, I when I was coaching all these people, there were many things that changed the way I think about health behaviors. When I say health behaviors, I want to introduce my audience with what the definition of health behavior is. Health behavior is something that you do for your own health to make it, to improve it, to make it more better. For example, if you are going for a walk, you are going for a jog, you are running, all these things, activities come under health behavior. And behavior doesn't mean here about your attitude and the way you talk. नहीं, इसका behavior अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा इंसान है. No, हम यहाँ पे ये behavior की बात नहीं कर रहे हैं. We are talking about behaviors which impact your health and well-being. And उसी तरह से there are some kind of unhealthy behaviors as well. For example, smoking, gambling, tobacco, and even doing stunts, risking your own life. So that comes under unhealthy behaviors. So all these things, I witnessed different kind of people. Like there were some people who had very good intention in their heart and mind कि नहीं, मुझे तो चेंज करना है, मुझे अपनी हेल्थ चेंज करनी है, मुझे अपना फिटनेस लेवल अच्छा करना है. लेकिन even with their best intentions and even with their best effort, motivation भी है, enthusiasm भी है, हाँ मुझे करना है, हाँ साजिद मैम आप मुझे हेल्प कीजिए, we will make it, मुझे weight lose करना है, मुझे अपना fitness improve करना है, I want to show people that I can. Even with the best effort, एक time आता है when they just go off the track. And it was quite surprising for me. Like me being a health consultant, I was doing everything that I could in my own capacity. I was giving them the best meal plan that I could. I was giving them the best workout plan that I could. I was giving them all the tips and techniques, advices, suggestions, support, listening to them, everything I was doing.
But I was surprised why some people are able to make changes and why some people are failing. Why some people are able to just reduce 10, 20 kgs in few couple of months, and some people just give up and they just withdraw from the program. So this came as a surprise for me, and I saw this trend going on for a couple of months, not just 1 month, 2 months, but for a year and a two. And when I researched more about it, what is really happening, why some people, even if they want to make a lifestyle change, suppose Dr. Himanshu, आप चाहते हैं अपनी health and lifestyle improve करना, even with your best intentions, हम लोग रोज सुबह नहीं उठ पाते हैं, हम लोग रोज सुबह walking या jogging या running पे नहीं जा पाते हैं. We have got all the knowledge being a physiotherapist. We know how our body functions. We have got all the resources with us. We have the best diet plans with us, workout plans with us. लेकिन वो ऐसी क्या चीज मिसिंग होती है कि हम लोग नहीं कर पाते somehow. Some days we are able to do it, but not all 365 days of the year. Why this is happening? And ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, globally this is the thing. Why making a lifestyle change is such a hard thing to do? Why chronic lifestyle diseases जो है वर्ल्ड में इतनी राइज पे क्यों है, जबकि हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी है. We have got best clinicians, diagnosticians, we have pathological reports and everything, even genetic testing भी आजकल आ चुकी है, but why all the diseases are on rise? And अगर आप हेल्थ केयर फैसिलिटी में देखेंगे, एज अ फिजियो या एमबीबीएस डॉक्टर या डेंटिस्ट, कुछ पेशेंट्स आपके पास हमेशा जो है दे विल कम with their problems. They are repeat patients or repeat clients. तो वो बार बार आपके पास आते हैं with your own problems, and their problems doesn't end there. You being a physiotherapist, you provide the best care, you provide the best treatment. उनका pain remove हुआ, वो ठीक हुए, आपने उनको home protocol दिया, वो घर जाके करते हैं, कुछ टाइम के बाद फिर वो छोड़ देते हैं. This is the thing. This is what is happening with most of the people. So why even why this is happening? Knowledge भी है उनको, we have got, आजकल तो सब कुछ आप गूगल कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है. फिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से जो है you are not able to change your habits and behavior? So इंटरनेशनल लेवल पे इस पे काफी काम हो रहा है हैबिट एंड बिहेवियर साइंस के ऊपर. एंड what researchers have found out is that we are hardwired to do activities that we have been doing. So this is why habits are those activities that we perform effortlessly and automatically. जिस तरह से हम लोग के लिए सुबह उठ के ब्रश करना effortless है, we don't need any kind of motivation या external motivation की हमें जरूरत नहीं होती है कि कोई हमें बोलेगा तो हम करेंगे. And even doing other unconscious activities, जैसे कि whenever we get out of the restroom we wash our hands, है ना. Whenever अभी जैसे कोविड क्वारंटाइन का सिचुएशन है, pandemic ka, so what people, they whenever they come home from outside, they're washing their hands and doing everything to clean themselves up, and they are taking care of their hygiene. So what is it? We are able to keep some of the healthy habits, but some of the unhealthy habits not longer. And you have trained your mind how to really work on yourself. अभी exactly होता क्या है with most of the people and globally ऐसा है with everybody, they think जब भी उनका 5-10 kgs बढ़ा, they realized मेरा weight बढ़ गया है and I have to do something for my health. चलो कल से फिर मैं jogging walking पे start कर दिया, मैंने gym का membership लिया and मैंने diet plan अच्छा सा लिया and फिर शुरू हो जाते हैं कल.
So this is the thing what people are doing, and here's the mistake that they're doing. They have to stop there. ये मेथड एंड ये अप्रोच जो है सस्टेनेबल है ही नहीं. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि सो व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच वी शुड अडॉप्ट. अगर आप किसी हेल्थ कोच की हेल्प ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं, यू आर सेल्फ कोचिंग योरसेल्फ, then the kind of method that you have to adopt should be entirely different. वो different approach ये है कि there are number of couple of steps that you have to take and throughout the whole process and journey. And ये जो behavior change के बारे में research जो हुई है, it was done in 1970s by behavioral scientist, and उन्होंने दिया था trans-theoretical model of behavior change, जिसके कुछ steps and processes जो होते हैं, stages होते हैं exactly. पहला stage जो होता है वो होता है pre-contemplation का, where जब भी कोई patient या client आपके पास आए, you can actually categorize that patient कि वो कौन से stage of behavior change में है ना. आप अपने पास हमेशा एक scale रखिए. तो मैं कुछ ready to use solutions भी बता रही हूँ जो हमारे doctors जो सुन रहे हैं इस webinar को. So इस चीज को ध्यान से सुने. Habit and behavior change का model है and उसके stages होते हैं. They have some stages. And आप जो भी आपके clients या कोई patients आपके आ रहे हैं, आप उनको exactly categorize कर सकते हैं कि ये कौन से stage में fall करते हैं, and उसके according you can intervene and help them. तो ये TTM मॉडल ये बताता है कि पहला स्टेज जो है वो है प्री कंटेम्पलेशन, यानी कि इसमें जो पेशेंट क्लाइंट है वो मानेगा ही नहीं कि उसकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है. दे विल बी लाइक, किसको, मैं मोटा हूँ? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं खाते पीते घर का हूँ, मुझे तो क्या प्रॉब्लम है. एंड मतलब इतना तो मोटा होना ही चाहिए, मतलब चलता है, मैं तो लाइफ ऐश कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ये सब डाइटिंग और जिम ये सब मेरे काम की चीज नहीं, आई वोंट बी डूइंग इट. आप समझ जाइए कि ही इज एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ बिहेवियर चेंज, वो है प्री कंटेम्पलेशन. सेकेंड स्टेज जो आता है वो है कंटेम्पलेशन. यहाँ पे पेशेंट क्लाइंट जो है वो थोड़ा बहुत इसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होगा, एंड ये इसको जो है अपने प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस होगा. ही विल बी नोइंग अबाउट दिस प्रॉब्लम बट स्टिल वोंट बी टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स इट. सपोज किस तरह के डायलॉग्स को बोलता है, मैं अभी आपको बताती हूँ. वो इस तरह का बोलेगा कि सपोज हाँ प्रॉब्लम है लेकिन हाँ इतनी बड़ी भी नहीं है कि कुछ करी जाए, आई विल थिंक अबाउट इट, मैं सोचूंगा, यस आई विल डू इट, हाँ करता हूँ, मैं फर्स्ट से करूंगा, मैं मंडे आई विल बी डूइंग ऑन द, या फिर मैं न्यू ईयर से स्टार्ट करूंगा, है ना. तो वो रेजोल्यूशंस बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, दे विल बी जस्ट थिंकिंग about it and they will be, अगर कोई उनसे बोलता भी है about कि हाँ कुछ you have some health problem, you have some issue, please take some steps towards it, तो वो लोग नहीं करेंगे कोई step because they are not ready for it. Exactly, बोला जाए straight forwardly तो they are not ready for it. तो if anybody, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो घर वाले हो, चाहे रिलेटिव्स हो, कोई भी उसको बोले उसको नहीं समझ में आएगा, he will be self exploring that. वो अभी सेल्फ अवेयरनेस के स्टेज में है ना. तो हमारा पहला स्टेज हो गया प्री कंटेम्पलेशन, जहाँ पे हमें तो परवाह ही नहीं है, हम इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करें, एक्सेप्टेंस नहीं है, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस. दैट पर्सन डजंट हैव दैट सेल्फ एक्सेप्टेंस दैट आई हैव सम काइंड ऑफ हेल्थ इशू. मैं स्मोकिंग करता हूँ, मुझे पता है स्मोकिंग के काफी सारे हेल्थ इश्यूज हैं, अल्कोहल के हैं, मुझे नहीं छोड़ना है. क्या इससे ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं होगा. आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई लाइफ, आई लव पार्टिंग एंड गोइंग आउट एंड आई एम एंजॉयिंग यूथ है, अभी बुढ़ापा थोड़ा आया है, मैं क्यों परहेज करूं, है ना. तो इस तरह के डायलॉग्स होते हैं. सो वो फर्स्ट स्टेज का हो गया प्री कंटेम्पलेशन. सेकंड स्टेज में हमें बहुत अवेयरनेस हो सकता है, ये अवेयरनेस आसपास के कुछ हुआ होगा सिचुएशन, उसकी वजह से आई. हो सकता है किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, किसी का कैंसर हुआ, किसी की डेथ हुई, या कोई नियरेस्ट कोई लव्ड वंस के साथ कुछ ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, उनका कोई डिजीज डायग्नोस हुआ किसी और का, या फिर उन्होंने खुद कुछ चीजें एक्सप्लोर करी जिससे कि उनको ये अवेयरनेस जागा उनके अंदर दैट यस आई हैव सम प्रॉब्लम एंड आई विल बी डूइंग समथिंग फॉर इट, लेकिन ही इज स्टिल नॉट रेडी. Next comes the third stage, which is called as preparation stage. And in this stage of preparation, what most patients and clients do is they will be preparing themselves and gearing for the action. यानी कि वो फिटनेस इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, डंबल्स खरीदेंगे,
वो देखेंगे शहर में सबसे अच्छा बेस्ट जिम कौन सा है, गोल्ड जिम है या शिप इन शेप है, कौन सा है मैं ज्वाइन करूँ उसको। एंड इवन जो भी बेस्ट आईटीशियन वगैरह है वो देखेंगे, या कि और कुछ अगर उनको मिलता है ऑनलाइन, दे विल बी सर्चिंग ऑनलाइन, वो गूगल करेंगे सब कुछ, यूट्यूब पे देखेंगे हाँ वेट लॉस के तरीके, या फिर थायराइड को ठीक करने के तरीके, डायबिटीज कैसे ठीक होगा, क्या क्या फूड आइटम्स है इसके लिए, तो वो सब्जी खरीदना स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे अपने घर में भी आप देख सकते हैं ऐसे लोगों को, है ना, अपने पेरेंट्स में भी आप ये सब स्टेजेस आप देख सकते हैं। अगर उनको किसी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या थायराइड किसी को है, तो उनकी बिहेवियर चेंज में ये सब सारी चीजें आप देख सकते हैं। दे विल बी बाइंग ऑल दोज थिंग्स, ghee, turei, pumpkin, gourd, bitter gourds, they will be buying all these stuff when taking them. So they are in the preparation stage, but they are still not ready to take any action. Okay. And next comes fourth है action phase. In this, यहाँ पे जो है client और patient जो है वो ready है to take some action. हाँ, and जो preparation उसने करी with all the shopping list and everything, he will be taking some action towards it and he will start that activity. तो जो भी आपको जॉगर्स पार्क में जॉगिंग करते हुए या वॉकिंग करते हुए दिखते हैं वो एक्शन फेज में है, या तो फिर नेक्स्ट हमारा फेज जो है एक आता है मेंटल फेज। काफी टाइम है बिहेवियर प्रैक्टिस करते हुए, चाहे वो वॉकिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, रन कर रहे हो, दे आर ईटिंग हेल्थी, चाहे वो वेगन डाइट हो, कीटो डाइट हो, व्हाटएवर दे आर फॉलोइंग, उनके हिसाब से, उनकी नॉलेज के हिसाब से, व्हाटएवर हेल्दी थिंग्स दैट दे आर डूइंग फॉर देमसेल्व्स, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वो उसको काफी टाइम तक मेंटेन करके रखते हैं, नॉट जस्ट फॉर फ्यू वीक्स बट 1 2 3 4 5 6 मंथ्स तक जब वो मेंटेन करके रखते हैं, दे आर इन द मेंटेनेंस फेज। तो आप ऐसे कुछ लोगों को देखेंगे अपने आसपास कि वो काफी टाइम से योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी टाइम से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली में मेंटेनेंस फेज में है। एंड फिर उसके बाद जो आता है नेक्स्ट फेज है वो रिलैप्स का आता है। एंड रिलैप्सेस सभी के साथ होते हैं एंड इट्स वेरी कॉमन एंड नेचुरल। एंड एक पर्सन जो एक्शन फेज में है वो भी रिलैप्स में जा सकता है, एक पर्सन पेशेंट जो है वो मेंटेनेंस फेज में है वो भी रिलैप्स में आ सकता है। एंड रिलैप्सेस के बहुत सारे रीजंस होते हैं, कुछ पर्सनल रीजंस, कुछ एक्सटर्नल रीजंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कोविड पैंडेमिक कंडीशन जो है वो हमारी एक्सटर्नल है, वी डोंट हैव थिंग्स इन आवर कंट्रोल, देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड। सो आपका जॉब हो, आपका जो भी आपको, इफ यू हैव टू गो आउटसाइड, यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत सारी चीजें जो है एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती है। सो रिलैप्स वहां पे हो जाता है। जब कोई फेस्टिवल आता है तब रिलैप्स हो जाता है। दिवाली आ गई, लोगों ने छोड़ दिया सारा प्लान, शादी आ गई, किसी का शादी अटेंड करना है, वो भूल गए कि मैं कुछ डाइट या मील प्लान फॉलो कर रहा था, या हेल्थ के लिए अपने कुछ कर रहा था, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स गेट यू ऑफ द ट्रैक। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इवन कुछ पर्सनल इश्यूज भी हैं, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हैं अपने स्पाउस के साथ, पेरेंट्स के साथ, या स्टडीज में कुछ, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम या प्रमोशन, कुछ भी हो सकता है ये। सो ऑल दीज थिंग्स बिकम अ रीजन फॉर रिलैप्स। एंड रिलैप्स से निकलने के भी तरीके हैं, एंड इफ दैट पर्सन इज अवेयर, बहुत सारे लोग जो है ये when off the track they come back again and get back to that action phase and maintenance phase again. लेकिन there are many people who believe that अगर मैंने ये सारे जो स्टेप्स लिए हैं 1 2 3 4 6, मैं अगर 5 स्टेप्स तक गया तो एंड अगर मैं क्रैश हुआ, आई गॉट ऑफ द ट्रैक, तो मुझे अगेन 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दिस। इफ you have made an effort towards making a health and behavior change, then you don't have to start from zero again. You can pick it up and from where you have left. So ये है TTM मॉडल इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। इसको डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। इसके ऊपर ये मोस्ट साइटेड जो है वो साइकोलॉजी में, काउंसलिंग में ये रिसर्च मॉडल जो है वो यूज होता है। ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंजेस को बोलते हैं। एंड ये इस
तरीके से एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर आप अपने जो पेशेंट क्लाइंट है उनको कैटेगराइज कर सकते हैं और इंटरवीन कर सकते हैं कि हाँ ये पेशेंट जो है इस स्टेज में है तो मुझे डील करना है। एंड जो कुछ कोचिंग स्किल्स जो हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट को अपने अंदर लाने पड़ेंगे ताकि वो or she can facilitate that kind of change and can actually start that kind of conversation where they convince or they facilitate that kind of self discovery and self awareness and self motivation जो है self efficacy, ये सारी जो चीजें हैं वो evoke करने के लिए ना client और patient जो है हमें कुछ खुद में skills as a doctor develop करने पड़ेंगे, तब जाके ये सारी चीजें जो है processes वो हो पाएंगे। Dr. Himanshu, you have any questions? Yeah. After listening, I get to know that I think this is moreover based on some psychological aspect of the psychological science. So I would like to ask you one thing. As normally as a practitioner, we deal with sometimes the operant conditioning, reward and punishment theory. So do you Yeah. have some sort of things Yes, while yes. coaching the patient, मतलब client? This is also, and this is also part of that, this is also part of human behavior and basic जो हम लोग concept यहाँ पे use कर रहे हैं in making a habit and behavior change is mental training. How we as doctors want to facilitate that change is by giving that kind of mental training to our patients and clients so that they are able to see, realize and make a shift and change. And brain में भी वो mental training वो कैसे होगा, वो change कैसे होगा, it's all because of how nature has created and phenomena known as neuroplasticity. तो जो secret ingredient जिसकी हम लोग पूरी बात कर रहे हैं या जिन लोगों को audience में भी curiosity होगी to learn about it, कि ये ऐसा कैसे हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए कोई कैसे मतलब हेल्थ बिहेवियर चेंज अपना कर सकता है, कोई हमेशा ही मोटिवेटेड कैसे रह सकता है, नहीं, मोटिवेशन हमेशा काम नहीं करेगा, कैसे हो पाता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी. सो दिस इज द सीक्रेट थिंग. एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी डॉक्टर हिमांशु शर्मा वो न्यूरो में उन्होंने एमपीटी किया है तो इन चीजों को वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं that how our brain functions and how जब भी हम लोग कोई नया skill learn करते हैं तो how our brain all the हमारे neurons जो हैं they start firing up and they make new connections and mental maps जो है बनना start हो जाते हैं. आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट एंड डॉक्टर आपने खुद में ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, बच्चों को पीडियाट्रिक केसेस भी आपने देखे होंगे, how kids pick up new things, वो नई चीजें कैसे सीखते हैं, how they learn from the environment, from the people that they see, किस तरह से बात करना सीखते हैं, चलना सीखते हैं. So all this thing is possible because of neuroplasticity, and neuroplasticity की भी कुछ limits है. And as having this kind of knowledge with us, we know that एक एज के बाद जाके 50, 60, 70 years के बाद जाके आपका जो है ब्रेन कैपेसिटी जो है धीरे धीरे जो है वो कम होने लग जाता है. एंड हेल्थ कोचिंग जो है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है कि, और ऐसा मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि जो लोग 50 इयर्स के 60 इयर्स अबव होते हैं वो ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं एंड उनका आउटकम जो है हेल्थ कोचिंग जो मेथोडोलॉजी हम लोग यूज करते हैं बिहेवियर चेंज की वो उन पे ज्यादा काम नहीं करती. व्हाई? अब इसके क्वेश्चन ये आता है उन पे क्यों नहीं काम करती जब यंग एडल्ट्स पे काम करती है एंड बच्चों पे काम करती है. तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड उनका ब्रेन जो है थोड़ा सा स्लो रहता है एंड दिस इज हाउ वी आर वायर्ड. एंड इसी तरह से हम लोग बने हैं. धीरे धीरे जो है हमारे सेल्स दे स्टार्ट्स डाइंग इन आवर ब्रेन टू. And अगर कोई person they haven't trained their mind, they are not working on their brain part, then वो धीरे धीरे जो है सारे skills जो है अपने खुद भी भूलते जाते हैं. They are forgetting many things and they are not able to grasp new concept as well. तो किसी भी 50-60 year old person को convince करना, उनको बताना कि आपको ये बीमारी है, आप ऐसा कीजिए, तब आपका ऐसा चेंज होगा आपकी लाइफस्टाइल में, ये काफी मुश्किल है. एंड उनसे एक्सपेक्ट करना एंड
आप उनको पेन से निकाल सकते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड डॉक्टर, आप उनको मेडिकेशंस दे सकते हैं, आप उनको जो भी इंटरवेंशन है सर्जिकल या नॉन सर्जिकल यू कैन डू एंड रिजल्ट आपको मिलेगा। बट व्हेन इट कम्स टू हैबिट एंड बिहेवियर चेंज वहां पे नहीं मिलेगा, क्योंकि दे आर सो रिजिड इन देयर थिंकिंग। ये मैंने अपना प्रैक्टिकल जो है कोचिंग में एक्सपीरियंस किया है। हो सकता है एक्सेप्शंस भी होते हैं, हमने देखा है 90 ईयर ओल्ड एंड 80 ईयर ओल्ड जो है वो मैराथन रन कर रहे हैं, कोई स्काई डाइविंग कर रहा है, तो एक्सेप्शंस आर ऑल देयर। लेकिन ज्यादातर देखा गया पॉपुलेशन में दे आर नॉट एबल टू रियली take up new things, they are not able to grasp new concept and new skills, they are very rigid in their thinking and mentality, तो उनका फिक्स माइंडसेट आ जाता है यहाँ पे। एंड पूरा जो कोचिंग है वो उसके भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जिस तरह से डॉक्टर के स्टेप्स होते हैं, एक डॉक्टर कैसे फंक्शन करता है इन ऑर्डर टू ट्रीट देयर पेशेंट, वैसी कोचिंग के कुछ मेथड होते हैं, ये सेशंस में लिया जाता है। बहुत सारे लोगों को अगर ये क्वेश्चन होगा कि हेल्थ कोचिंग कैसे किया जाता है, सो ये ऑनलाइन भी होता है एंड ऑफलाइन भी होता है, एंड दोनों ही इफेक्टिव है। एंड इट्स नॉट सो कि आपको रिजल्ट ही मिलेगा, इट इज क्वाइट इफेक्टिव, इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एंड इट्स अ कन्वर्सेशन between you and the patient or client, which evokes self-awareness and self-efficacy in them, and they are motivated from inside. एंड इसका एक डेमो भी हम लोग इस वेबिनार के एंड में लेने वाले हैं। डॉक्टर हिमांशु शर्मा वो वॉलंटियर करेंगे, ही विल बी माय क्लाइंट एंड आई विल बी ट्राइंग एंड टेस्टिंग माय हेल्थ कोचिंग स्किल्स ऑन हिम। तो आप एंड तक इस वेबिनार को देखिएगा, इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी, पता नहीं क्या निकल के आए। Thank you, ma'am. Thank you. It was actually a great examples you are taking, and we are having a great curiosity here. And you can even see, even though after I think around more than 40 minutes here in the session, and we have 99% attendance here in the session. So it is aura that you amazing, are amazing. Thank you everyone for being here. And आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, it's very interesting topic actually, and it's not just only for our profession, it's also for our own sake, it's also for our own health, and we all want to improve our health and fitness. हम लोग में से कोई भी ओलंपिक एथलीट नहीं है, लेकिन हम लोग बन सकते हैं, because we all have strength and power to be one if we get the right kind of mental training. And क्योंकि हमारा brain ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, our brain is controlling our hands and legs and how we are making decisions in the split second. कि मतलब अगर दो चीजें मेरे सामने रखी हुई है, एक एप्पल रखा हुआ है एंड कुकी रखा हुआ है या बिस्किट्स रखे हुए हैं, आई एम रीचिंग फॉर व्हाट। आप अपने आसपास ये नोटिस कीजिएगा एंड देखिएगा कि कुछ लोग शाम होते ही, कुछ लोग होते हैं वो फ्रूट्स खाएंगे, कुछ लोग हैं चाय बिस्किट लेंगे। व्हाई दिस इज हैपनिंग? वो स्प्लिट सेकंड में वो डिसीजन ले रहे हैं, है ना? सो ये डिसीजन आता कहाँ से है? It's all because of the brain and the patterns they have formed within themselves. And कुछ लोगों की आदत होती है घड़ी देख के वो बोलते हैं कि हाँ चाय पीने का टाइम हो गया। So this is what happens. तो वो एक उनको इस चीज के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए. So why this is happening actually? It's all because of the habits and patterns we have formed throughout all these years. बचपन से लेके आज तक जो हमने सीखा है अपने environment से, अपने आसपास अपनी फैमिली में जो चीजें देखी है, हमने जो चीज खुद करी है, हमने खुद से भी बहुत कुछ सीखा है, एक्सपीरियंसेस हमें हुए हैं। अगर हमें कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो हमारे बिलीव्स फॉर्म हो जाते हैं। तो एज अ हेल्थ कोच हम कहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूँ। के साथ क्लाइंट के साथ एक अच्छा रैप एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो यही है। आपके सभी के पास पेशेंट्स एंड क्लाइंट्स आते ही होंगे, यू हैव टू फॉर्म अ वेरी गुड रैपो विद देम। एंड रैपो ऐसे ही नहीं बनेगा, इसमें भी टाइम लगता है। यू हैव टू गिव दैट पर्सन स्पेस वेयर दे कैन बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट विथ यू, एंड आपका पूरा अटेंशन जो है उनकी तरफ होना चाहिए एज अ डॉक्टर एंड एज अ कोच। यू आर पेइंग अटेंशन, आप नोट्स नहीं लिख रहे हैं, आप अपने स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप फोन की तरफ नहीं देख रहे हैं, यू आर टोटली
looking at that person, और अगर टेलीफोनिक अगर आप कर रहे हैं, you are totally into that conversation, you are listening, इसको बोलते हैं active listening, and passive listening नहीं करना, you have to do the active listening, you have to listen with all, इसको बोलते हैं listen with unconditional positive regard. तो जिस तरह से unconditional love के बारे में आपने सुना है, यानी कि कोई कंडीशन नहीं हो, तो वैसे एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होता है, यानी कि यू आर शोइंग सो मच रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर दैट पर्सन दैट whatever that he is ready to say and speak, you are all there to hear it with all your heart, एंड आप पूरी तरह से प्रेजेंट है उस कन्वर्सेशन में, उस पर्सन की बात सुनने के लिए, समझने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, ट्रैजिक से ट्रैजिक इवेंट्स हो, चाहे वो शेयर करना चाहता हो, चाहे वो हैप्पीएस्ट मोमेंट हो, कुछ विंस वो आपसे शेयर करना चाहता है, whatever healthy things or whatever good things they have done or whatever they are feeling about themselves, वो अपनी feelings, thoughts, emotions, अपनी life जो शेयर करेगा आपके साथ, तो उसके रेडी होने के लिए you have to show all these things, you have to be a very active listener. एंड ये पूरा जो कोचिंग का कन्वर्सेशन है वो आधे घंटे में या कुछ मिनट नहीं होता, इट लॉट ऑफ टाइम, and 1.5 hours या 2 hours भी लगता है. And when you're giving that much of time and attention to a patient and client, that patient client आप सोच सकते हैं he or she is just like wow, इतना टाइम तो मुझे कभी किसी ने दिया ही नहीं. मतलब मैं जब भी डॉक्टर के पास जाता हूँ, एक तो मुझे ही टाइम देना पड़ता है, मतलब लाइन लगा के मैं खड़ा रहता हूँ, एंड डॉक्टर के पास सिर्फ 7-8-10 मिनट जाके मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने को मिलता, उसमें भी वो बस वो पर्ची पकड़ा देते हैं और मैं दवाई लेने के लिए चला जाता हूँ. सो दिस इज व्हाट हैपेंस, बट वी हैव टू रियली शो सम केयर फॉर द पेशेंट, एंड तभी हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ठीक होगा, तभी जो डिजीज लोग हैं इतने हमारे पॉपुलेशन में वो ठीक होंगे. तो सिर्फ हमें पेन ही उसका रिमूव नहीं करना है, वी हैव टू सी द पेशेंट एज अ होल. जब एक पेशेंट या क्लाइंट कोई आता है हमारे पास, तो वो सिर्फ अपनी एक कंप्लेंट लेके आता है, वही बोल पाता है, लेकिन वी एज अ डॉक्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वी हैव अ नॉलेज ऑफ ब्रेन, वी हैव नॉलेज ऑफ how our human body functions, and even हमें न्यूट्रिशन के बारे में भी हमने पढ़ा है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है, न्यूट्रिशन साइंस भी पढ़ा है, साइकोलॉजी भी पढ़ा है. तो हमें ये सब स्किल्स को यूज करना चाहिए, ये सब नॉलेज को इनटू द प्रैक्टिस वी हैव टू रियली पुट फॉरवर्ड. एंड ये ऐसा तभी हो पाएगा when you're giving that space and attention to that patient and client, तब जाके वो जो है open up होगा, they will speak their heart out and they will say, एंड उसको लगेगा कि हाँ डॉक्टर जो है सही में मेरी केयर करते हैं, वो मुझे सुन रहे हैं एक्चुअली में. आज तक मुझे कभी किसी डॉक्टर ने सुना नहीं, समझा नहीं, एंड ये मुझे सुन रहे हैं, एंड ही इज एक्चुअली देयर फॉर मी. फिर उसके बाद जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है वेयर यू आर टेकिंग अ मेडिकल हिस्ट्री. यूजुअली जो आप करते हैं, यू आर वेरी गुड एंड स्किल्ड एट इट, तो यहाँ पे मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आप पूरा मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, आप पूरा उसका डिटेल जो भी इवेंट्स हुए हैं, सर्जरी, इंजरी, जो भी रिसेंट ईयर्स में जो भी कुछ हुआ है, लैब टेस्ट हैं, वो सब यू विल बी गोइंग थ्रू ऑल दीज रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग. बट अदर जो है वहाँ पे असेसमेंट का पार्ट आता है उसका लाइफस्टाइल से रिलेटेड. यू विल बी आस्किंग अबाउट लाइफस्टाइल, यू विल बी आस्किंग अबाउट देयर व्हाटएवर थिंग्स दैट दे ईट एंड व्हाट दे फील अबाउट देमसेल्व्स. ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पूछते हैं, अगर आप सिर्फ डॉक्टर की तरह, कंसल्टेंट की तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब आपको शायद ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज यू हैव अदर पेशेंट्स एंड क्लाइंट्स टू हैंडल टू. लेकिन एज अ हेल्थ कोच, इफ यू आर देयर, देन यू आर गिविंग दैट मच ऑफ 1.5 to 2 hours ऑफ टेंशन एंड टाइम, तो आपके पास काफी स्पेस, टाइम होता है ये सब बातें पूछने का, एंड क्लाइंट भी जो है अच्छे से खुल के बता पाता है आपको ये सब आपकी प्रॉब्लम. एंड कोचिंग कन्वर्सेशन जो है सिर्फ ऐसे नहीं होता है, इसमें प्रॉपर एग्रीमेंट होता है. वी हैव आवर इंटरनेशनल बॉडी नोन एज इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन, जो कि अपना प्रोटोकॉल उनका खुद का है, एंड वी हैव जस्ट लाइक फिजियोथेरेपिस्ट एंड डॉक्टर्स हैव, वी हैव आवर कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोटोकॉल्स जो कि हम लोग फॉलो करते हैं. और हम लोग ये क्लाइंट को भी कन्वे करते हैं स्टार्टिंग में, वी हैव रिटन एग्रीमेंट जिसपे वो साइन करते हैं, तभी जाके हम लोग उसको प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं. एंड जब वो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो हमारा इस तरह से फर्स्ट अप्रोच जो होता है वो मीट एंड ग्रीट, बिल्डिंग रैपो एंड communicating with them and letting them vent out everything that they have in their mind and heart.
इसमें टाइम जरूर लगता है, बट इट इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे कि वो फील कर पाएगा दैट you are the support person, you will be guiding them throughout the whole journey, and you are not just there to take their money and है ना, तो ये एक एस्पेक्ट है. एंड सेकंड जो पार्ट आता है आफ्टर यू हैव बिल्ट रैपो विद देम, नेक्स्ट कम्स यू विल बी आस्किंग अबाउट देयर health issues whatever that they are facing, and they will tell about different things, चाहे वो disease हो, मैं मोटा हो गया हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, I want to shed some weight 10 kgs 20 kgs, या I have मेरे जो vital stats हैं वो ठीक नहीं है, या फिर थायराइड है मुझे तो वो कम करना है, ये सब हेल्थ प्रॉब्लम्स वरीज ही विल बी शेयरिंग विथ यू. एंड देन कम्स यू विल, आप जो जिस तरह, then comes आपका questioning part as a coach. You will be asking some questions. यहाँ पे motivational interviewing आता है. It is a kind of counseling technique. हमारे ये motivational interviewing जो है, इसके बारे में थोड़ा सा brief जो है पिछले किसी webinar में जो है हमारे speaker ने उन्होंने mention किया था about motivational interviewing. तो motivational interviewing होता क्या है? It's a kind of dialogue and interviewing, questioning your patient or client with एक proper technique होती है, asking them open ended questions, and आपने जब questions उनसे पूछे तो उनके जब वो जवाब दे रहे हैं, you have to listen, you have to be the active listener, you have to affirm with those feelings. जैसे अगर किसी ने बोला कि मैंने बहुत ज्यादा वेट बढ़ा लिया है, सब लोग अब मुझे टोकने लग गए हैं, बोलने लगे हैं, then you will be affirming that yes, I can understand and I can totally relate to this, or I can and feel how you feel about it, being shamed in the public about all these things. So you are affirming or you are reflecting back all these things, और जो भी वो information देगा आपको, you will be just collecting that and summarizing, and वापस से आप उसको convey करोगे. हाँ, मुझे आपकी बातों से, आपने जो case history दी है, ये सब से ये मुझे ये समझ में आया है कि आपको ये प्रॉब्लम हुई है. तो इस तरह से जो पेशेंट है, क्लाइंट है, वो समझेगा कि हाँ सही में डॉक्टर ने मुझे इतने पूरे आधे घंटे जो मैंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, वो एक्चुअली में ही हैज लिसन टू. आप समराइज करेंगे उसको. तो समराइजिंग द होल कन्वर्सेशन इज ऑल्सो एक्टिव पार्ट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर एंड अ कोच, अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो. देन ये होगा. उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस आता है. When you have built rapport, you are questioning, you are asking about their life, their timeline, कि बचपन कैसा था, teenager कैसा था. Then slowly and gradually जो भी वो details देंगे, आपको पता लग जाएगा उनकी कहीं ना कहीं conversations में they will be having some kind of limiting beliefs. अब limiting beliefs क्या होता है? Limiting beliefs are those beliefs which we form or internalize in ourselves, which limits our potential or strength. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने सोच लिया नहीं मेरे घर परिवार में तो सभी मोटे हैं इसीलिए मैं मोटा हूँ, दिस इज द लिमिटिंग बिलीफ. अगर किसी ने बोला कि मैं गरीब हूँ और हमेशा ही गरीब रहूंगा, आई कैन नेवर बी रिच, दिस इज द लिमिटिंग बिलीफ. इफ समबडी इज सेइंग दैट मैं कुछ भी खाऊं, आई इजिली पुट ऑन वेट, दिस इज द लिमिटिंग बिलीफ. ओके, तो ये सारी नेगेटिव चीजें. कुछ पॉजिटिव बिलीव्स भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन बोलेगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ एंड ये मैंने पहले भी किया है, सो दिस इज अ पॉजिटिव बिलीफ अबाउट देमसेल्व्स. कि हाँ मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं आई एम वेरी स्पोर्टी पर्सन, है ना, आई एम वेरी स्पोर्टी एंथुसियास्टिक कॉन्फिडेंट पर्सन. जब कोई ये बोलता है, then इससे समझ में आता है कि he has a positive belief about themselves. एंड नेगेटिव बिलीफ क्या होता है? अगर कोई पर्सन खुद को अपने आप को लेबल करता है, आपने अपने आसपास बहुत लोगों को देखा होगा ये बोलते हुए, मैं बहुत लेजी हूँ, या नहीं मैं इनकॉन्फिडेंट फील कर, मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या मैं इंट्रोवर्ट किस्म का हूँ, या मैं एक्सट्रोवर्ट किस्म का हूँ, नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, दिस इज नॉट माई जॉब, दिस इज माई नॉट रोल, है ना. तो ये सारे जो है अपने आप में लिमिटिंग बिलीव्स हैं, because these are just in your thoughts and your brain and mind. Human body has a potential to achieve a lot of different things. कि हम सभी की बॉडी में मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स सेम हैं एंड सिमिलर हैं,
हम लोग भी ओलंपिक एथलीट उसेन बोल्ट बन सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं बन पाते हैं? सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे बचपन से हमें बहुत सारे बिलीव्स फॉर्म हुए हैं। चाहे हमारे पेरेंट्स ने बोला हमें नहीं अंधेरे में नहीं जाना, वहां पे कोई पकड़ लेगा, है ना? तो बच्चों को स्टार्टिंग में डरा देते हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं आगे भी चल के उनके अंदर चीज रहे कि नहीं अंधेरे में नहीं जाना है, या स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, नहीं वो लोग झूठ बोलते हैं या पकड़ लेंगे, या something tragic will happen. So all these kind of things जो है आपकी beliefs को फॉर्म करते हैं, and these beliefs shape your reality. क्योंकि आप हर वक्त हर दिन अपनी इस beliefs को strong करने के लिए actions आप लेते हैं। अगर जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे introvert person जो हैं वो अपने आप में जो है पार्टीज नहीं जाएंगे, क्योंकि वो खुद को समझते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं अपना इंट्रोवर्ट टाइम जो है आई विल बी लिसनिंग टू म्यूजिक, या आई विल बी डूइंग सम एक्टिविटीज एंड थिंग्स विद इन माय होम, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, है ना? तो यहाँ पे आ गया कि there are some beliefs that you have formed about self, and जैसे मैंने ये आपको लाइंस बोली, टैग लाइंस, अगर कोई अपने बारे में बोलता है that I'm a lazy person, I'm a fat person, I feel terrible, या फिर I'm a terrible person, मैं बहुत short tempered हूँ, so all these things in psychology इसके लिए term use होता है, it's called self labeling, and ये भी चीज जो है हमारे potential को limit करती है। These are limiting beliefs, and next comes जो पेशेंट या क्लाइंट के कन्वर्सेशन में आपको पता चलेगा, इट्स अबाउट देयर माइंडसेट, कि उनका माइंडसेट कैसा है, उनका माइंडसेट फिक्स्ड है कि ग्रोथ माइंडसेट है। एंड फिक्स माइंडसेट वाले लोग जो हैं वो कोई भी स्टेप उठाने से पहले, डिसीजन लेने से पहले, वो पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जिनका फिक्स माइंडसेट है, उनको अगर पहला कोई उनका रिलेशनशिप खराब हुआ, देन दे विल बी कॉशियस अबाउट द सेकंड वन, कि नहीं 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 मैं नहीं, आई वोंट बी इंडल्जिंग इन दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड क्योंकि उनका बुरा एक्सपीरियंस था, तो दे हैव अ फिक्स माइंडसेट अबाउट दिस थिंग कि मुझे ये नहीं करना है। या फिर कुछ लोग जो है वो माइंडसेट की वजह से बिजनेस नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है नहीं मेरे लिए तो जॉब ही ठीक है, नहीं मुझे मंथली सैलरी मिल जाए, मैं उसी में खुश हूँ। सो यहाँ पे उस पर्सन का जो है फिक्स माइंडसेट है, ही इज नॉट एबल टू रियली थिंक बियॉन्ड दैट। एंड यही जो चीजें हैं, फिक्स माइंडसेट, लिमिटिंग बिलीव्स, हमारे पोटेंशियल को लिमिट करती है। एंड इसके ऊपर काफी सारी बुक्स भी लिखी जा चुकी है, कई सारे सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी जा चुकी है, ऑथर्स, रिसर्चर्स ने काफी काम किया है इस चीज के ऊपर। आप इस पे गूगल करेंगे, अमेजोन पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी बुक्स मिलेगी। एंड पूरा जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है वो इसी करता है, पूरा जो इतना $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री है वो इसी चीज पे थ्राइव करता है। वो लोग जो है आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं फैक्ट्स एंड रियलिटी की। माइंडसेट के बारे में बुक है, अबाउट हैबिट एंड बिहेवियर चेंज के बारे में बुक है, अबाउट माइंडफुलनेस इसके बारे में बुक है, अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बुक है। लेकिन इंडियन लोगों में थोड़ा सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने की थोड़ी कम आदत है, यहाँ पे फिक्शनल चीजें थोड़ी ज्यादा पढ़ते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो आप पेशेंट्स या क्लाइंट्स अपने देखेंगे, तो वो लोग उस तरीके के नहीं आएंगे। तो the kind of conversation that you're having with the client will tell you what they are actually, वो लोग अंदर से अपने बारे में क्या फील करते हैं, how they identify themselves and who they are, what they do, where they are, where they want to be. Okay, आपको who, what, when, what, how, where ये अगर पता चल गया किसी पर्सन का, then you can help that person till the end to reach their full potential, है ना? तो आप ये पता चल गया कि हाँ ये पर्सन अपने क्या सोचता है, ये पर्सन किस स्टेज पे है बिहेवियर के, एंड ये पर्सन की क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है, यू विल बी आस्किंग अबाउट दैट एज वेल, कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, आपको पहले किस चीज में, अगर वो पर्सन वेट लॉस के लिए आया है तो आप उससे पूछेंगे कि आपने पहले कभी वेट लॉस के लिए ट्राई किया है, क्या क्या चीजें ट्राई करी है आपने, फिर वो खुद बताएगा कि हाँ मैंने ये चीजें ट्राई करी है एंड दे हैवंट वर्कड फॉर मी। देन इस तरह से जो कन्वर्सेशन है, ओपन एंडेड कन्वर्सेशंस काफी सारे होते हैं, मैं कुछ ही इलस्ट्रेट कर पा रही हूँ यहाँ पे, लेकिन काफी सारे होते हैं। एंड ऑल दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चन वेयर द पेशेंट और क्लाइंट गेट्स लॉट ऑफ चांस टू ओपन अप एंड स्पीक ब्रॉडली एंड डिस्क्राइब कर सके। सिर्फ हाँ या ना में बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको प्रॉब्लम है, हाँ है, आपको दर्द हो रहा है, हाँ हो रहा है,
कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो मतलब आप सिर्फ इतना लिमिट अगर रखेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे पेशेंट या क्लाइंट को। और जो भी ज्यादातर लोग डिजीज के साथ आते हैं, हेल्थ के फैसिलिटी में आते हैं, इफ दे हैव सम काइंड ऑफ डिजीज, यू कैन बी वेरी श्योर कि इसकी लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन इंडियन पॉपुलेशन जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम है, दे हैव नो कंट्रोल ओवर इट। लेकिन ज्यादातर लोगों को, चाहे वो थायराइड हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो इवन ऑर्थोपेडिक इश्यूज हो, अदर देन इंजरी एंड एक्सीडेंट या एक्यूट केसेस, जो क्रॉनिक केसेस हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। एंड बिकॉज उनकी लाइफस्टाइल ऐसी क्यों है, बिकॉज ऑफ द डेली एक्टिविटीज दैट दे आर डूइंग। एंड डेली एक्टिविटीज वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इवन नोइंग, इवन विद द नॉलेज कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, नहीं मुझे 5 कप दिन में चाय नहीं पीने चाहिए, फिर भी वो क्यों पी रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ they don't have that kind of mental training. They haven't really spoken to themselves about it, है ना। तो उन्होंने खुद के ऊपर कभी काम ही नहीं किया। वैसे लोगों ने अपने ऊपर they haven't really reflected on what they are doing actually, where their life is heading. तो आपके पास पेशेंट या क्लाइंट जो आ रहा है, if you're coaching them, then you will be asking them about their wellness vision, what their vision is, where they want to be. ठीक है, अभी वो डिजीज स्टेट में है, ठीक है, अभी वो अनहेल्दी स्टेट में है, उनकी फिटनेस लेवल ठीक नहीं है, बट वेयर दे वांट टू बी, वो उनका ड्रीम क्या है, व्हाट्स योर ड्रीम लाइफस्टाइल इज लाइक, व्हाट्स योर ड्रीम फिटनेस इज लाइक। एंड देन फिर उनकी स्टोरी स्टार्ट होगी। वो बताएंगे कि हाँ, हम चाहते हैं कि ये अचीव करना, मैं इतना केजीज रिड्यूस करना चाहता हूँ, या आई वांट टू इम्प्रूव माय रिलेशनशिप, या ऐसा होना चाहिए, मैं स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में और पैसा चाहता हूँ, आई वांट टू मेक मोर मनी। फिर आप और क्वेश्चनिंग करेंगे, व्हाई यू वांट मोर मनी, व्हाई एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द रीजन व्हाई। एंड ये रीजन पूछना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर बुक भी लिखी हुई है, स्टार्ट विथ व्हाई, सिर्फ इसी एक टॉपिक पे, है ना। मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा कोट कर रही हूँ, एक क्वेश्चन आई विल आस्क द पेशेंट और क्लाइंट कि व्हाई यू वांट टू अर्न मोर मनी, या व्हाई यू वांट टू रिड्यूस वेट। लेकिन इसके ऊपर पूरी किताब, मोटी सी किताब लिखी हुई है ऑथर ने, एंड इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी पढ़ना चाहते हैं कोई ऑडियंस में से, वो पढ़ सकते हैं। हमारे लिए हमारे पर्पस को जानना बहुत जरूरी है। अगर हमारी लाइफ पर्पसलेस है, या आपके पास कोई पर्पस नहीं है, देन यू विल बी जस्ट वैंडरिंग अराउंड हियर एंड देयर। जैसे कि आपके करियर को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके, यू आर वेरी श्योर कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे क्यों बनना है डॉक्टर? क्योंकि आई वांट टू हेल्प पीपल, आई केयर फॉर पीपल, आई वांट टू सी पीपल हेल्दी एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। तो हम लोग इस चीज में, हमारा विजन क्लियर था, हमारा मिशन क्लियर था, इसलिए हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन कई सारे लोग जो हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनकी लाइफ का मिशन या पर्पस क्या है। एंड इवन हेल्थ को लेके भी अगर वो कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो वो क्यों चेंज करना चाहते हैं। कुछ लोग सुपरफिशियल लेवल पे वो बताएंगे कि आई वांट टू बी इन वेरी गुड शेप, अभी मेरा शेप अच्छा नहीं है, मुझे कपड़े फिट नहीं आते हैं, या लोग मुझे बॉडी शेम करते हैं। सो दीज आर वेरी एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल रीजन जब आप बार बार उनसे पूछोगे that why you are doing this, why you want this, what you will get out of this। ठीक है, आपने वेट लॉस अचीव कर लिया, ठीक है, आपने ये अचीव कर लिया, उसके बाद क्या, where your life will be heading। So all these questions will reveal their true self, and through these kind of conversation you will be able to सेट सम गोल्स। फिर नेक्स्ट फेज आता है गोल सेटिंग का एंड एक्शन प्लानिंग का, क्योंकि आपको उनकी पूरी लाइफ के बारे में पता चल गया, आपको उनके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस के बारे में, लिमिटिंग बिलीव्स, उनके माइंडसेट के बारे में पता चल गया। नाउ यू आर इन गुड पोजीशन वेयर यू कैन सेट सम गोल्स, सो यू विल बी पार्टनरिंग विद देम। आप खुद गोल्स नहीं बनाएंगे, आप कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं है, आप डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट जो कंसल्टेंट नहीं है। अगर आप कोचिंग ऑप्ट कर रहे हैं, यू आर स्विचिंग द रोल फ्रॉम अ कंसल्टेंट टू कोचिंग, देन व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी पार्टनरिंग विद द क्लाइंट एंड आस्किंग देम व्हाट इज योर गोल एंड वेयर यू वांट टू बी। सपोज इन 1 month अगर आपको अचीव करना है अपना ये हेल्थ गोल, तो क्या आप इसको कर पाएंगे? एंड गोल सेटिंग के भी अलग अलग मॉडल्स होते हैं। ग्रो मॉडल होता है, स्मार्ट गोल सेटिंग मॉडल होता है, इसके काफी सारे मॉडल्स हैं। एंड इसके ऊपर पूरा डिटेल शायद हमारा लेक्चर चला जाएगा, 2nd and 3rd पार्ट भी हो जाएगा डॉक्टर हिमांशु। एंड अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, सो आई विल बी ब्रीफली टेलिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड एक्सप्लेनिंग। एंड तो हम लोग गोल सेटिंग एंड एक्शन प्लानिंग करते हैं। विल बी चंकिंग इन वेरी स्मॉल गोल्स,
कि ताकि वो पर्सन जो है डेली लाइफ में अपनी वो सारी चीजें कर सके विच आर अचीवेबल. अचीवेबल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अचीवेबल नहीं होगा दे विल बी फीलिंग डिसअपॉइंटेड विद इन देमसेल्व्स. उनको लगेगा अरे शिट यार मैं फिर से फेल हो गया. मतलब दोबारा से वही अगेन वो डाइट साइकिल जो है उनका चलता रहेगा. मैंने एक डाइट फॉलो करी थी, मैंने योगा किया था, काम नहीं किया, चलो छोड़ो मैं पिलाटेस ट्राई करूंगा. ये किया, फिर ये भी काम नहीं किया, नहीं अब मैं कार्डियो करूंगा, नहीं अब मुझे जुम्बा क्लासेस करनी है, नहीं अब तो मैं किक बॉक्सिंग करूंगा. तो मतलब दे जस्ट कीप ऑन चेंजिंग ऑल दिस स्ट्रैटेजीज एंड मेथड, लेकिन असली में जो उन्हें चेंज करना था was their own self, their thought, belief, identity, what they feel about themselves, how they perceive the world, how they see themselves, where they want to be, how they tackle all the obstacles that they will be facing. ये सारी चीजें रियलाइजेशन है, काफी रिफ्लेक्शन है इन सब चीजों के ऊपर. एंड ये सेशन बाय सेशन होता है, इसमें 1 मंथ का, 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, इवन 1 ईयर का भी टाइम लग जाता है. डिपेंड्स ऑन द केस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इशू. And many a times when a person is facing any kind of complex psychiatric illness such as depression, anxiety, or they are taking some prescription drugs, or they haven't been honest with you, अगर पूरे process में अगर वो कुछ ऐसा कर रहे थे जो कि ठीक नहीं था and they were violating some of the rules, then you have to refer that patient or client to some other प्रोफेशनल जो कि उस चीज को हैंडल करें. या अगर कोई पेशेंट क्लाइंट जो है सुसाइडल फील कर रहा है, देन यू विल बी रेफरिंग दैट पेशेंट, यू वोंट बी हैंडलिंग दैट केस. एंड आप अपनी कैपेसिटी में जो आपसे हो पाए वो आप करेंगे, लेकिन यहाँ पे यू हैव टू टेक अदर प्रोफेशनल हेल्प ऑल्सो. तो ये हेल्थ कोचिंग जो है एक अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है. यू विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, यू विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ अदर हेल्थ के प्रोफेशनल्स एज वेल. तो यहाँ कोई मेडिसिन बंद भी नहीं करवाते हैं, ना ही हम लोग उनको बोल रहे हैं कि आप और बाकी जो आप इंटरवेंशंस कर रहे हैं, दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, वो आप करना बंद कर दें. नहीं, इट्स नॉट वन स्टॉप सॉल्यूशन, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द होल पिक्चर एंड एवरीथिंग. जब आप सब चीजों पे काम करेंगे, हर तरीके से काम करेंगे, तब जाके योर लाइफ और योर लाइफस्टाइल विल इम्प्रूव. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड integrative medicine or integrative health and wellness coaching, because we are integrating all different fields and specialities into it. तो इसीलिए इसको ये बोला जाता है. एंड ये आगे जो है एक नेक्स्ट थिंग है अबाउट रिलैप्स. अगर कोई पर्सन इतने एफर्ट्स के बाद भी अगर रिलैप्स करता है तो रिलैप्स इंटरवेंशन भी होता है यहाँ पे कि हाउ that person can deal with it, and how that person feels about the failure. We let the person or client fail because things. तो ऐसा नहीं है कि you will be disappointed या आप उसको जो है वो reflect करेंगे back to the patient or client, but you will be supporting that person into that process, and failing is also part of the whole game and process. पूरा जो हेल्थ एंड बिहेवियर लाइफस्टाइल जो चेंज कर रहे हैं आप, फेलिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. क्योंकि फेल जब होगा पर्सन, तभी वो अंडरस्टैंड करेगा कि मैंने क्या गलत किया एंड व्हाट नेक्स्ट राइट थिंग आई हैव टू डू, व्हाट इज राइट फॉर मी. कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, जो भी क्लाइंट्स या पेशेंट होते हैं वो मेरे मना करने के बाद भी खुद के लिए बहुत हाई गोल सेट करते हैं कि नहीं मैम मैं तो 45 मिनट्स डेली वर्कआउट करूंगा, यस आई कैन डू इट, आई हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी, अभी मैं यंग हूँ, आई हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी. लेकिन आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स दे लूज दे फोकस. चाहे वो उनके जॉब में कोई नया प्रोजेक्ट उनको मिल गया है, चाहे कोई फेस्टिवल है, घर में शादी है, बीवी से परेशान है, या कुछ भी कोई भी टेंशन दुनिया भर का है, तो इसकी वजह से दे गेट ऑफ द ट्रैक एंड उनका जो 45 मिनट्स का डेली वर्कआउट का गोल था, दे इट जस्ट फेल्स. then that person realizes कि हाँ मैम आप जो कह रही थी वो सही था, मुझे 45 मिनट्स का नहीं करना चाहिए था, एंड मुझे शायद मेरे लिए 10 मिनट्स का ही हैबिट फॉर्मिंग के लिए ठीक है. सो दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स. तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग का, रिफ्लेक्टिंग का एंड करेक्टिंग आवर ओन मिस्टेक्स जो है, सेल्फ डिस्कवरिंग योर ओन पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ, पूरा थ्रू आउट द कोचिंग प्रोसेस जो है ये चलता है. एंड this is how we make the behavior change, and thanks to how nature has made us, has given us the brain which helps us in forming new connections, and neuroplasticity की वजह से ऐसा possible हो पाता है. हम लोग एक skill जब सीख लेते हैं
को भूल नहीं पाते। तो उसी तरीके से जैसे कुकिंग, ड्राइविंग, साइकिलिंग हम लोग एक बार सीख लेते हैं, यू डोंट गेट इनटू द ड्राइविंग स्कूल एंड एडमिट योरसेल्फ अगेन। आप एक बार 4 व्हीलर सीख लेते हैं, आप दोबारा से वापस से ड्राइविंग स्कूल नहीं जाएंगे। आपने एक बार स्विमिंग सीख ली, यू वोंट एनरोल योरसेल्फ इन द सेम स्कूल अगेन। And in the same way and pattern, if you've learned how to manage your own health, then you won't be doing that all over again. So main thing which is lacking in our whole in the general population is that skill of how to manage your own health. And ये अपने आप में जरूर एक स्किल है जो सभी को, हम सभी को सीखनी चाहिए एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, या हम अपने पेशेंट्स या क्लाइंट्स को भी जब देख रहे हैं तो वी शुड सी दैट पर्सन एज अ होल एंड फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो पर्सन जो है सीखे कि उसको अपनी हेल्थ खुद से कैसे मैनेज करनी है। तो इसके काफी सारे फायदे होते हैं। जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसका बर्डन, जो कॉस्ट है वो कम होगा, आपके पास रिपीट क्लाइंट्स जो है वो आना कम होंगे, एंड ओवरऑल हमारी पूरी सोसाइटी में जो है क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है वो कम होगी। तो ये सब चीजें कम तब होगी जब लोग रियलाइज करेंगे कि यस, लाइफस्टाइल चेंज इज वेरी इजी टू डू, but it all requires is the mental training. And just like any other thing, गिटार सीखना हो आपको, कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, ड्रम सीखना हो, उसमें जिस तरह से टाइम लगता है, आप भी जरूर, आप किसी से भी बोलिए, आपके कांटेक्ट में जो भी लोग आते हैं, आप उनसे जो भी सोचते हैं कि हाँ हम डाइट फॉलो कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, वर्कआउट कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, नो, दिस इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। अल्टीमेट सोल्यूशन इज द हैबिट एंड बिहेवियर चेंज। तो आप उनको बोलिए कि आप वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, but before that do the mental training first, explore and discover yourself first, because if you haven't done that thing first, आपने अगर mental training नहीं करी है तो आपको you are setting yourself up for failure, you will be failing sooner or later. Okay, so this is what is happening. लोग जो है इस चीज को काफी neglect करते हैं, and they are not they don't see the significance of it कि mental training भी हमारे लिए जरूरी होता है। and mental training का एक और पार्ट है emotional intelligence। तो ऐसा देखा गया है जिन लोगों में ज्यादा emotional intelligence EQ होता है, वो लोग ज्यादा जो हेल्थ कोचिंग के जो रिजल्ट्स है उनको ज्यादा अच्छे से, सक्सेस रेट उनमें काफी हाई रहता है, दे आर एबल टू ग्रास्प एंड फॉलो एंड मेक देयर ओन चेंजेस। इवन वो सेल्फ कोच भी अगर खुद को करें तो ज्यादा अच्छा उनको रिजल्ट मिलता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट हम सभी को इस पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, वर्किंग ऑन आवर मेंटल इमोशनल वेलबींग। अगर हमारे कोई थॉट्स आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये इस प्रोसेस को समझना। और जो भी हम लोग, मैं लास्टली ये वाइड फेनोमेना जो चल रहा है वो इट्स अबाउट फोन एडिक्शन। एंड जिस तरह से कोविड कंडीशन एक पैंडेमिक है, उसी तरह से फोन एडिक्शन एक बहुत बड़ा पैंडेमिक है, जो कि इवन एडल्ट्स में, यंग टीनेजर्स तो छोड़िए, पहले उनकी प्रॉब्लम चल रही थी। यंग एंड जो टीनेजर्स थे वो लोग आते थे हमारे पास कि हाँ इनको फोन एडिक्शन है, बट इवन ओल्डर एज एंड सीनियर सिटीजन्स में भी फोन एडिक्शन का काफी बड़ा इशू है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हैबिट एंड बिहेवियर चेंज। और इसके पीछे का मैं एक आपको सच्चाई बताती हूँ। आई विल बी टेलिंग यू द ट्रुथ। द ट्रुथ इज why this is happening, because Facebook, Instagram, Twitter, all these social media apps, or whatever habit forming apps that you're using, they are being designed by the बहुत लोगों को नहीं पता है कि बहुत सारे जो हमारी डेली लाइफ में हम लोग चीजें देखते हैं, हमें लगता है कि हम लोग इतने एडिक्टिव क्यों होते जा रहे हैं, क्यों इस फूड की तरफ, क्यों इस ऐप की तरफ, या क्यों इस गेम की तरफ, या क्यों इस जो भी चीज वो एक्टिविटी करें उसकी तरफ वी आर गेट्स इट रिपीटेडली। हमारा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वी आर वेस्टिंग आवर टाइम ओवर इट, एंड बाद में हमें गिल्टी फील होता है। हमें लगता है कि हम पढ़ाई की चीजें कर रहे हैं, लेकिन एक नोटिफिकेशन आता है, यू आर ब्राउजिंग थ्रू दैट, एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वन। फिर कोई अच्छी चीज आती है, फिर कुछ और आप देखते हैं, फिर यूट्यूब का लिंक खुलता है, फिर कुछ और। सो all these things keep on happening and we are getting distracted हो रहा है हमारी सोसाइटी में। वी आर जस्ट लॉस्ट इन द वर्चुअल वर्ल्ड, एंड रियल वर्ल्ड में रियल ह्यूमन कनेक्शन जो है वो मिसिंग है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस को ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझे एज ए डॉक्टर एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एंड अपने पेशेंट्स एंड क्लाइंट्स को भी इस वे में समझे कि उनमें भी अगर कोई एडिक्शंस या लाइफस्टाइल जो चेंजेस हो रहे हैं,
bad changes in their lifestyle is all कुछ उनके खुद की वजह से हो रही है because they haven't worked on their mind, and कुछ जो हो रहे हैं external reasons की वजह से हो रहे हैं because they are totally unaware how marketing game is being played, and how जिस तरह से जो भी हमारे social media and all these things जो है चल रहा है वो हमें और ज्यादा एडिक्टिव बना रहा है. क्यों क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड, इसके बारे में जो बिहेवियरल साइंटिस्ट है उन्होंने बात करी है, पूरी किताब भी हैबिट के ऊपर लिखी है, अबाउट पावर ऑफ हैबिट, एंड इसके ऊपर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. क्यों क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड, जब भी कोई क्यों हमें रिमाइंडर मिलता है तो हम लोग वी गेट द काइंड ऑफ itch and craving, satisfy that urge and to attend to that reminder, and then क्यों craving response हमारा response होता है, and then you craving response and reward, then we get the reward, we see that thing, the content that is right in front of us and display. तो क्यों क्रेविंग रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड को अगर हम चाहें तो इसको ये हमें डिस्ट्रक्टिव भी बना सकता है, ये हमारी हेल्थ को खराब भी कर सकता है, या हमारी लाइफ को पूरी जो 24 आवर्स का आपका पूरा दिन है आपका इसमें 1-2 घंटा जा भी सकता है. एंड इफ यू यूज दैट क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड हैबिट का जो ये प्रोसेस है आप इसको अच्छे से समझ लें, यू कैन यूज इट एज योर स्ट्रेंथ, and you can create that kind of environment in your home and at your workplace where you will be making healthy lifestyle changes. एग्जाम्पल यहाँ पे मैं छोटा सा देना चाहूंगी, जैसे कि मैंने अपने सारे रूम में जो है वाटर बॉटल्स प्लेस कर दी, तो मैं ऐसे भी ऑटोमेटिकली इफ आई एम रोमिंग अराउंड इन माय हाउस, आई क्योंकि वाटर बॉटल दिखना एक मेरे लिए विजुअल क्यू है, सो आई विल गेट दैट क्रेविंग कि हाँ चलो पानी पी लेते हैं, है ना, इट्स गुड फॉर द बॉडी, so I will drink that water. And ये मेरा response था, and I got the craving response and reward. My thirst was fulfilled and I feel satisfied कि हाँ मतलब I feel good about it कि हाँ मैंने पानी पिया. और whatever अगर आप कोई health goal अपना set कर रहे हैं कि हाँ I have to complete my hydration level, मेरा body जो है मैं बहुत कम पानी पीता हूँ, तो इस तरह से बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है. आप अपनी लाइफ में भी डेली लाइफ में बहुत सारे क्यूज जो है रिमाइंडर सेट कर सकते हैं. क्यू का मतलब रिमाइंडर्स हमेशा ही अलार्म फोन पे सेट करना नहीं होता, आप अपने एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें जो है वो रख सकते हैं that reminds you you have to do that thing. Like for example, suppose first thing in the morning, if you are placing your sports shoes right near your bedside, जहाँ पे आप उठते हैं जैसे ही, तो आपको अपने स्पोर्ट्स शूज देख के तुरंत याद आएगा कि हाँ मुझे बाहर जाना है. So you can, if you want, you can set all these reminders at your home, workplace to facilitate that kind of बिहेवियर चेंज इन यू. और इसके ऊपर काफी डिटेल में और भी काफी सारी चीजें हैं, तो पूरा मैं इस जो पूरा वेबिनार है उसको अगर मैं समराइज करूं, वी एज अ डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वी have to see the person as a whole and resourceful. The person has got everything that is required to make a shift and change in their lifestyle, but they are not able to make those changes. वो उनकी गलती नहीं है, वो कुछ internal reasons हैं, कुछ external reasons हैं. तो कुछ कुछ केसेस में हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं, ज्यादातर केसेस में उनकी हेल्प कर सकते हैं, सो दैट दे कैन बेटर सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट देयर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस आर एंड दे कैन वर्क ऑन इट. एंड वहां पे आप जो है प्रोसेस में आप पूरे प्रोसेस में सपोर्ट कर सकते हैं, हैविंग दैट काइंड ऑफ मेडिकल नॉलेज, आप उनको पूरे प्रोसेस में सपोर्ट कर सकते हैं. एंड लास्टली आई वांट टू डिफाइन हेल्थ कोचिंग इन माय ओन लैंग्वेज, क्योंकि काफी सारी डेफिनेशन जो है वो आप बुक्स में देखेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे. मेरा खुद का डेफिनेशन क्या है मैं बताना चाहूंगी कि हेल्थ कोचिंग एक ऐसा रिलेशनशिप है दैट यू क्रिएट विद अ हेल्थ कोच, जहाँ पे आपको वैसा इंकरेजमेंट मिले, वैसा एम्पावरमेंट मिले जो आप अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं. आपको वैसा फ्रेंडली एंड फनी जो है कोलैबोरेशन मिले जो अपने एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड से एक्सपेक्ट करते हैं. एक ऐसा it's a kind of the kind of privacy and confidentiality that you seek from your spouse. वो confidentiality in spouse जो है, वो privacy and confidentiality जो है वो है जिसमें आपको patient चाहिए, privacy, you need that kind of understanding thing, you need that kind of attention. All these things जो है, जो कि as a human
we are seeking from people around us. वो health coach जब देता है आपको 1 hour 2 hours के सेशन में, तब आपको इतना स्पेशल फील होता है कि आप सब कुछ बोल देते हो, एंड फिर हेल्थ प्रैक्टिशनर आप वो उनकी हेल्प कर पाते हो. यू आर एबल टू सी नॉट जस्ट a diseased person, but you are able to see the potential of that person. ये आपको दिखता है कि हाँ ये person जो है कहाँ तक जा सकता है, and जो वो बोल रहा है सिर्फ वो उसकी लिमिट नहीं है. Sorry to interrupt you, ma'am. Yeah. Ma'am. Sorry to interrupt you. Actually, it was a pleasure listening from you, and we actually most of my question you have already covered. So, but still I have some curiosities in my mind, because after listening, I generated many curiosities. So, as we are already short of time, so I would like to ask you one thing: that is there any specific courses that can be opted to become a health and wellness coach? Yes, there are many online courses that are available, and it's not required to do the offline. Offline भी available है, online भी available है, international courses भी हैं और Indian courses भी हैं. So it totally depends on what you want to do or what Can you kind please list out the title of the courses and some prominent universities from your side, as you suggest? जी, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट बॉडी नहीं है जो कि एक्रेडिटेशन प्रोवाइड कर सके. जो इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन और नेशनल कोचिंग कंसोर्टियम फॉर हेल्थ एंड वेलनेस कोचेस, ये जो है ट्रेनिंग स्कूल्स को ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है कि हाँ आपका करिकुलम जो है वो हमारे नॉर्म्स को फुलफिल करता है, एंड आपका जो आपके अंडर जो भी स्टूडेंट्स जो हैं पास आउट कर रहे हैं, यस दे विल बी सर्टिफाइड. तो काफी सारे इंटरनेशनल कॉलेजेस जो हैं हेल्थ कोचिंग देते हैं. बिहेवियरल मेडिसिन या हेल्थ कोचिंग जो है वो देते हैं. इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड वेलनेस कोचिंग के नाम से भी है, वेलनेस कोचेस के नाम से, हेल्थ कोचेस के नाम से है. लेकिन अगर आप मेडिकल वे में ज्यादा जाना चाहते हैं या ज्यादा नॉलेज इस पे चाहते हैं कि यू वांट टू डील विद द मेडिकल केसेस एंड क्रॉनिक कंडीशंस एंड शिफ्टिंग द लाइफस्टाइल रादर देन जस्ट वर्किंग ऑन द वेलनेस पार्ट, क्योंकि हमारा फील्ड एंड जॉनर भी वही है, देन यू कैन टेक अप दैट हेल्थ कोचिंग. एंड इसके अलग अलग प्राइस रेंजेस हैं. जो फॉरेन इंटरनेशनल कोर्सेज हैं वो प्राइस उनकी काफी ज्यादा है. वो लैक्स में है, वो MBA कोर्स करने के बराबर है. तो आप समझ सकते हैं, है ना, लाइक जस्ट लाइक यू आर डूइंग योर मास्टर्स और MBA, उतना उसकी कोचिंग फीस है. कुछ मंथ्स के हैं, 6 मंथ्स के हैं या 12 मंथ्स के कोर्सेज हैं. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. कुछ कोर्सेज फ्री भी हैं. Any suggestion for online course? Any platform? Anything else? Yes. मैं अगर कोई इंटरेस्टेड है इसके बारे में और पढ़ना और जानना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही होगा कि edX.org ये एक मूक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफी सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो उस पे बिहेवियरल मेडिसिन करके एक कोर्स है एंड हेल्थ कोचिंग करके भी एक कोर्स है. तो यू कैन डू दैट कोर्स एंड इट्स फॉर फ्री टू अंडरस्टैंड द रियल कॉन्सेप्ट्स एंड साइंस बिहाइंड इट, एंड पूरा डिटेल में प्रिंसिपल्स एंड ऑल दीज थिंग्स यू कैन लर्न. फिर अगर आपको इंटरेस्ट आता है इस टॉपिक में, you think that you want to practice this thing, you want to master it, you want to get certified in it, then फिर आप आगे चल के जो है आगे इंडियन इंस्टीट्यूट्स जो है काफी सारे 2-3 है इंस्टीट्यूट. मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कांटेक्ट कर सकते हैं एंड गूगल सर्च करके वो देख सकते हैं कि कौन कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. तो वो प्रोवाइड करते हैं. एंड इसकी जो फीस है वो स्टार्ट होती है 1 लाख के अराउंड से स्टार्ट हो जाती है. इट कैन बी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6, 8, एंड ये सारे जो हैं वो प्राइस रेंज रहती है पूरे कोर्स की. एंड ये कोर्स में थ्योरी भी होता है एंड प्रैक्टिकल भी होता है एंड ट्रेनिंग भी होता है, ऑन द स्पॉट ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है. तो जिस तरह से हम लोग ये वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं तो उसी तरह से ऑनलाइन सेशंस होते हैं. या edX, हाँ जी आपने सही कहा डॉक्टर हिमांशु, ये edX.org है. हाँ edX, हाँ जी. तो ये इस पे फ्री कोर्स अवेलेबल है हेल्थ कोचिंग से रिलेटेड. आप सभी जो भी इंटरेस्टेड हैं दे कैन गो एंड अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट इट. काफी बहुत ही अच्छा ये कोर्स है, करिकुलम है, अपने आप में पूरा फुल है. लेकिन क्योंकि हमें सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, एनीबडी कैन आस्क यू फॉर दैट
एंड तो इससे बेटर है कि आप सर्टिफाइड हो जाएं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, यू कैन डेडिकेट जस्ट 1 and 3 months इनटू इट, एंड आप इसमें ट्रेनिंग भी ले लेंगे, थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे आप। इसमें हमारा एक सब एग्जाम होता है लास्टली, वो हमें देना होता है। तो कुछ सेशंस भी लेने होते हैं रियल क्लाइंट्स के साथ, फिर आपको वो प्रोजेक्ट जो है सबमिट करना पड़ता है, केस स्टडी सबमिट करना पड़ता है, देन दे रिव्यू इट, दे ऑडिट, दे एग्जामिन ऑल दीज थिंग्स, दे मार्क यू ऑन दैट, एंड इस तरह से पूरा प्रोसेस है एजुकेशन का। Thank you, ma'am. Thanks a lot for such a great elaboration on the newest area, the behavioral science and the courses about it. So we are really grateful, and definitely because in this COVID era, it has been increased the popularity of the online courses. Even in the medical education also, there are various platforms. They are offering the medical courses for different subjects, sometimes for some topics. So will definitely it would be a good thing for us. They'll Yes, we can study. इवन यूडेमी के बारे में सुना होगा, उस पे Yeah, भी yeah. कुछ कोर्सेज वगैरह हैं, तो वो कम कॉस्ट में लेस देन 1000 जो है वो आपको कोर्स मिल जाएगा हेल्थ कोचिंग का। लेकिन उससे सर्टिफिकेशन लेना एक सही चीज नहीं होगी, उसके पीछे भी काफी रीजंस है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोवाइडर्स हैं कोर्सेज, आप सिर्फ सीखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेशन के लिए ठीक नहीं है वो। ठीक है, Ma'am, तो for नॉलेज के लिए ठीक है, certification, विजडम। yeah, ma'am, for certification, I would like to ask that as you told us that in the EDX it is I think free or it is chargeable. Yes, it is free. It is free. It So is free. they'll not provide any You can certificate. do it. Certificate लेने के लिए you have to pay the fees. Okay, okay. So as there is you mentioned there are some Indian institute also they are offering the certified courses. So is this certificate valid Yes. around the globe? As you have mentioned, there is some international Yes. association also. So the Yes. ये somebody जो हाँ जी जी if somebody is जी enrolled मैं from the आपका Indian क्वेश्चन institute, समझ के yeah, yes, please. जी जी अगर कोई इंडियन इंस्टीट्यूट से भी करते हैं तो ये आपको चेक करना होगा। सो फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू इफ यू आर टेकिंग अप एनी सर्टिफिकेशन, देन यू ट्रेनिंग, आप अगर एडमिशन ले रहे हैं किसी ट्रेनिंग स्कूल में फॉर हेल्थ कोचिंग, देन व्हाट यू हैव टू चेक इज गो टू द इंटरनेशनल एक्रीडेटिंग स्कूल्स हैं, तो उसमें लिस्ट आती है, उसमें लिस्ट में अगर वो इंडियन इंस्टीट्यूट का नाम है तो आप वो इंस्टीट्यूट से कर लें, अगर उनका नाम नहीं है तो ना करें। जिस उस लिस्ट में अगर जिसका भी नाम है आप उन्हीं से करें, अगर उसका नाम नहीं आता है वो तो वो आप ना करें। एंड नेशनल बोर्ड सर्टिफिकेशन जो है वो भी एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है इसके लिए। आप और भी इसमें हायर लेवल पे भी जा सकते हैं, इसके भी अलग अलग कुछ लेवल्स होते हैं, एसोसिएट, Ma'am, प्रोफेशनल एंड एग्जीक्यूटिव लेवल। जी, इट ma'am, डिपेंड्स as ऑन हाउ मेनी कोचिंग आवर्स यू कंप्लीट। जिस तरह से पायलट अपने आवर्स कंप्लीट करता है तो उसको बैजेस मिलते हैं, उसी तरह से हेल्थ कोच अगर अपने कोचिंग आवर्स 100 कोचिंग आवर्स 500 1000 कंप्लीट कर रहा है, उसके हिसाब से उसको कॉम्पिटेंसी के लिए दे गेट दैट बैज। oh, right. So, ma'am, as you mentioned, it is a part of integrated medicine. So, there are some courses like यस यस DISM something. So, is this also the part of that curriculum, or they have some specific courses for health coaching only? There is some bachelor degree courses, I guess. There is for integrated medicine and something. So, is this part of that curriculum or a different curriculum? इंटीग्रेटिव मेडिसिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, आपको Okay. करिकुलम एंड सिलेबस देखना पड़ेगा। अगर Okay, okay. इंटीग्रेटिव मेडिसिन में कई कई जगह पे जो है आयुर्वेदा, यूनानी, हर्बल एंड होम्योपैथी ये सब इंक्लूड करके कुछ चीजों को या न्यूट्रिशनल साइंस एंड एलाइड और हिप्नोथेरेपी एंड रीकी और भी काफी सारी चीजें हैं आजकल ना, तो ये सारे एलाइड हेल्थ प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, तो वो उसको इंटीग्रेटिव उसमें वो आता है। अगर वो सारे करिकुलम में है तो वो एक अलग चीज हो गई। इन हेल्थ कोचिंग जो है थोड़ा वो डिफरेंट है, आपको एग्जैक्टली यही टर्म से सर्च करना पड़ेगा हेल्थ कोचिंग। Okay. अगर वो उसमें करिकुलम में सिलेबस में नहीं है हेल्थ कोचिंग, देन यू शुडंट डू। Ma'am, there's one more query last. There are a lot of query, but as per the time, I want to ask some
important queries for my point of view. Yes, yes. That if someone is doing some course and all, as you mentioned that there are few hours that a candidate has to complete on the time, and that the particular candidate will get a batch. So this batch will indicate the how it is indicating. It is indicating the experience, expertise, or how does it affect the financial aspect of an individual. That as in the you mentioned, it may take sometimes 1 hour, 2 hour, and you also mentioned that sometimes a client a session may need to be continued for at Yes, least yes. for 1 year. So have you encountered some Yes, yes. patients who are continuously coming to you for 1 year? And because it is less commonly seen, the patient has been following, and if you are devoting so much of time, then how much the charge Yes, yes. you should ask to the patient Mm-hmm. as per the Indian scenario? Yes, yes. As per the Indian scenario and Indian market, हम लोग के जो charges हैं as a health coach, you have to charge according to the market that you are in. So you'll be charging as much as in your locality what the physiotherapist or other dietitian, nutritionist, and all other people are charging. Plus आपका खुद का value, experience and expertise. बिकॉज ये काफी ज्यादा वैल्यूबल है. अगर आप कम अपने चार्जेस रखेंगे, आपके पास ज्यादा क्लाइंट्स एंड लोग आएंगे, तो यू वोंट बी एबल टू हैंडल एंड कंप्लीट इन जस्ट 1 डे. क्योंकि इसमें हर एक पेशेंट जो है, अगर आप 1 hour या 2 hours के लिए देख रहे हैं, इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट. इन अ डे यू विल बी एबल टू डू जस्टिस विद जस्ट 10, और मैक्सिमम आप 10 या 12 के साथ ही कर पाएंगे. उससे ज्यादा यू इट्स नॉट अंडर योर कैपेसिटी एंड कंट्रोल. सो व्हाट यू कैन डू इज आप यू कैन रेज योर फीस देयर, एंड अगर आपको एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, तो यू कैन रेज योर फीस. एंड इंटरनेशनल लेवल पे इसका जो प्राइसिंग है वो पर सेशन स्टार्ट होता है $75 से, इट गोज अप टू $200 पर सेशन या पर आवर. सो दिस इज द रेट. ये रेट है इंटरनेशनल का. एंड इंडियन सिनेरियो में जो है, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 5,000 के अराउंड पर आवर जो है वो लिया जाता है. एंड लेकिन आपको अपने मार्केट को भी देखना है, एंड व्हाट यू आर गिविंग, व्हाट फीचर्स एंड सर्विसेज दैट यू आर गिविंग, एंड व्हाट द आउटकम दे आर एक्सपेक्टिंग, एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड कितने नंबर ऑफ सेशंस ले रहे हैं. अगर किसी ने बोला कि नहीं मुझे वीकली सेशन चाहिए, इट complexity, your expertise, your value, how much value that you perceive. तो ये सारी चीजें हैं इसमें इंक्लूडेड हैं. तो काफी Hello.